सर अभी नशा मुक्त भारत अभियान शुरू है और इस अभियान के अंतर्गत किन किन मादक पदार्थों पर रोक लगाने पर जोर दिया जा रहा है। मैंने आपको तभी बोला कि 2019 में एक बहुत बड़ा सर्वे किया था भारत सरकार ने कि हमारे देश में किस किस तरह के मादक वस्तु के ऊपर लोग अवलंबित है और क्या क्या हानि हो रही है। तो उसमें हमने देखा कि जो कॉमन है तो उसके लिए पहले तो निकोटिन है, फिर अल्कोहल है, कैनिबस है, ओपियोड है, हेलुसिनोजेंस और सेडेटिव्स। ये 4 टॉप 6 एडिक्शंस है हमारे भारत देश में। और सभी एडिक्शन का अपना ही एक सिम्टम्स होता है। अच्छा। उनका ट्रीटमेंट अलग से रहता है और उनका जो इफेक्ट बॉडी के ऊपर है वो अलग अलग रहता है। कुछ लोग किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, कुछ लिवर के ऊपर होता है, कुछ ब्रेन के ऊपर होता है। तो अलग अलग मादक वस्तु अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करता रहता है। हम कंटिन्यू करेंगे सर, एक कॉलर ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, आपलं नाव? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮೀರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ವ್ಯಸನ ಶುರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ವ್ಯಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಮೊದಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಈ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದರ ವ್ಯಸನಗಳ ಬಲಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ವ್ಯಸನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ವ್ಯಸನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಜೋಶಿಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥ ಏನು ವ್ಯಸನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಹಾಗದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಏನೋ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಸ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಆತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಂದ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮೀರ್ ಅವರೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು KLE ಹೆಲ್ತ್ ಗೈಡ್ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಶಾ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. सर अभी नशा होने के अभी रीज़न तो आपने बता दिए कि बहुत सारे प्रेशर रहते हैं या फिर एक फैमिली हिस्ट्री, वो रीज़न आपने बताए. एक बार नशा लग गया, वो आदत लग गई, तो छुड़वाने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट है और वो हमेशा हमें लेनी चाहिए क्या? तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना चाहिए कि कौन से मादक वस्तु का व्यसन हो रहे हैं, कब से हो रहा है और कौन से अगर ड्यूरेशन कितना है, उसका क्या डोज है, कौन से फॉर्म में ले रहा है, उससे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके बॉडी के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हो रहा है, वो थोड़ा एनालाइज
करके होता है। हम इसको एक सैम करके एक एक्रोनिम है जो हम यूज़ करते हैं। हम इसमें एस फॉर स्क्रीनिंग, वी ट्राई टू स्क्रीन उसके कौन से एडिक्शन है, कितना एडिक्शन करते हैं, कौन से कितने ड्यूरेशन में करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद वी ट्राई टू एसेस, फिर एडवाइस, एग्री और मॉनिटर। तो इसके बारे में हम और भी थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे, बट सबसे पहले हमको उसको एसेस करना चाहिए कि उसका कौन से एडिक्शन का प्रॉब्लम है और क्या क्या सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, उसके बॉडी के ऊपर कैसे है, उसके कौन से कैटेगरी में हम, मैंने पहले आपको बोला था कि इंटॉक्सिकेशन है, डिपेंडेंसी है, टॉलरेंस है या विड्रॉल सिम्टम्स है, या आइदर सिंगल एडिक्शन है और मल्टीपल एडिक्शन है। तो ऐसे हम कैटेगराइज करके उसको हम अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। उसको आउट पेशेंट के ऊपर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट्स को एडमिट करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा। इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक कॉलर जॉइन हो रहे. हॅलो. हॅलो, हां, नमस्कार. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. नमस्कार. तम प्रश्न केळी. हा, माझा प्रश्न असा आहे की माझा मुलगा पितोय, मग ते कसं सोडवायचं आणि कुठं इलाज होईल त्याचा? हाँ, उनका सवाल ये है कि उनका बेटा ड्रिंक्स लेता है और वो कैसे छुड़वाए और कहाँ पे उसका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करे. बहुत ज़्यादा प्रमाण है. हाँ, मैं वही बोल रहा था कि इसका जो ट्रीटमेंट है, दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं. एक तो आउट पेशेंट के ऊपर जो लाइक माइल्ड है, रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो उसको आप कोई भी साइकियाट्रिस्ट या एडिक्शन सेंटर में लेके जाके उनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. लेकिन बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो कभी कभी पेशेंट्स को एडमिट करके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. तो इसको साइकियाट्री सेंटर में या कोई भी डी एडिक्शन सेंटर में जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, सोशल वर्कर्स, योगा थेरेपिस्ट. सो एक टीम होता है, एक टीम के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि ये सारे टीम अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, सेफ एनवायरनमेंट है उनके ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे आप जाइए. वहाँ पे आपको आपका ट्रीटमेंट जनरली क्या होता है, सबसे पहले हमको उनका विड्रॉल सिम्टम्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए होता है. उसके बाद उसका डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है. देन इस रिलैप्स क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट्स उससे बाहर आ जाता है, लेकिन अब फिर से फ्रेंड के साथ मिलता है, फिर से वो स्ट्रेस के ऊपर एनवायरनमेंट में फिर चला जाता है. तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस. जो एडिक्शन में सक्सेस रेट इज़ लेस देन 15 to 20%. सो दिस इज तो समथिंग आपके केली में है क्या इसका इलाज करने? केले में अवेलेबल है. जी. हमारे के लिए डॉक्टर प्रभाकर कौर हॉस्पिटल में साइकियाट्री का डिपार्टमेंट है, और शाहपुर में केली श्री बीएम के आयुर्वेदा महाविद्यालय में भी रिसेंटली हमने डी एडिक्शन सेंटर लागू किया है, जो इसका आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे डॉक्टर्स है, वहाँ पे आईपीडी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जो में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में और जो प्रभाकर कौर हॉस्पिटल में, वहाँ पे साइकियाट्री डिपार्टमेंट में उनका मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स है. तो आप अगर कोई भी या हमारे कंकनवाड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज शाहपुर में, नहीं तो नेहरू नगर का जो प्रभाकर कौर हॉस्पिटल है, वहाँ पे साइकियाट्री डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कीजिए. ज़रूर हम इसका सहायक के लिए हम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, थँक्यू सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच कॉल केल्याबद्दल. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे सर कि मतलब एक 20 इयर्स तक हम बच्चों को संभाल सकते हैं, या फिर उनको मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर डरा के धमका के उनको मैनेज कर सकते हैं. बट उसके बाद में उनको थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है. उनका एक अलग सर्कल हो जाता है. फिर वो बाहर जाके क्या करते हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता. घर में भी सेपरेट उनका रूम रहता है, तो घर पे क्या चलता है वो भी कई बार पता नहीं चलता. तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको कैसे हम संभालें और कैसे इन सब चीज़ों से दूर रखें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि कभी कभी जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हमारी बात सुनते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं. तो उनसे फिज़िकली और मेंटली उनको संभालना